Welcome to Civil Services Achievers Point. This is the 25th and last lecture of Environment and Ecology. In Civil Service Achievers Point, these are different courses. To avail any one of the course, please contact this number. And in this last class, we are going to see different hazards, nuclear hazards, and we are going to deal with the natural disaster management. Okay, and we are going to see disaster risk reduction, World Conference on Disaster Risk Reduction, the Sendai framework for disaster risk reduction for the year 2015 to 2030, the institutional arrangement in India to deal with disasters, and at last we are going to see the National Disaster Management Act of 2005. Now let's start from nuclear hazards. See, nuclear hazards with increased emphasis on the power generation through nuclear technology, the threat of nuclear hazards has increased because nowadays we are diverting our source of energy towards sources like nuclear technology, right? And because of that, the threat of nuclear hazards is also increasing day by day. The Department of Atomic Energy, that is DAE, has been identified as the nodal agency in the country in respect of man-made radiological emergencies in the public domain. So the Department of Atomic Energy has been identified as the nodal agency. Okay, it will be the Department of Atomic Energy will be the nodal agency in respect of man-made radiological emergencies. Any kind of emergency that will come out because of use of this nuclear sources, nuclear technology, the responsibility will go to Department of Atomic Energy in the public domain. The nuclear facility in India have adopted internationally accepted guidelines for ensuring safety to the public and environment. So Indian government and Department of Atomic Energy is adopting internationally accepting guidelines and different processes that is recognized at the international level for the safety of the public and our environment. A crisis management system is also in place to take care of the nuclear hazard. जो nuclear hazard हो सकता है उसके लिए crisis management system भी है already. ठीक है, we also have a crisis management system. In case वहाँ पर कोई nuclear hazard के लिए जरूरत पड़ा तो ये system already हमारे पास ready है. In addition to the other types of emergency response plans in place within the facility to handle local emergencies, इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, लोकली हैंडल करने के लिए लोकल एजेंसी हमारे लिए रखा हुआ है. ठीक है, लोकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए it will response plans. The response plans have also been drawn up for handling such emergencies in the public domain, which are also called off-site emergencies. तो लोकल एरिया में मान लो यहाँ पर न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पर न्यूक्लियर साइट है, तो हर एक लोकल एरिया में एक इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने एक रेस्पॉन्स टीम बना रखा है. ठीक है, और लोकली वो डील करेंगे उसके साथ, तो इसको हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी भी बोलते हैं. Now these plans drawn up separately in detail for each site, which are under the jurisdiction of the local district administration, cover an area of about 16 km radius around the plant and of the offsite emergency planning zone. ये जो offsite emergency planning zone हमने बना रखा है, जो system बना रखा है response system, that will cover an area of around 16 km around the zone or around the radius of the plant, the nuclear plant. ठीक है, अब disaster management. Let's talk about the disaster management. Now, disaster management efforts are geared towards the disaster risk management. जब disaster management की बात बोलते हैं हम लोग, actually are going to talk about the disaster risk management. कैसे जो disaster हो सकता है, the cause can be anyone. Okay, it can be man-made, it can be natural. और अगर जब disaster हो गया तो हम उसको management के लिए कैसे risk, जो disaster से जो risk है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक disaster risk management system भी रखा हुआ है. Now, disaster risk management implies the systematic process of using administrative decisions, organizations, operational skills and capacities to implement policies, strategies and coping capacities of the society and communities to lessen the impact of natural hazards and related environmental टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर. अब हम डिजास्टर की जब बात करते हैं, है ना, मैनेजमेंट की, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन. जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होगा फर्स्ट, है ना, डिसीजन जो लेगा एडमिनिस्ट्रेशन वाला. एक ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें, है ना, ऑपरेशनल स्किल होगा इसमें, जो स्किल बेस्ड हम लोग उसको ऑपरेशनल हम उसको टेक्नीशियन रखेंगे उसमें, है ना, एंड द पॉलिसी रहेंगे इसमें, लॉज रहेंगे टू डील विद दिस सच काइंड ऑफ डिजास्टर. कैपेसिटी बनाएंगे सोसाइटी में so that we can reduce the impact of natural disaster hazards in our environment. This comprises of all forms of activities including structural and non-structural measures
टू अवॉइड प्रिवेंशन और टू लिमिट मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द हैजर्ड। देखो इसमें स्ट्रक्चरल भी होगा और नॉन स्ट्रक्चरल भी होगा, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज भी होगा उसमें, नॉन ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं पॉलिटिकल और एनजीओ वगैरह भी सब कुछ आ सकते हैं उसमें, है ना। और टेक्नीशियन भी होगा उसमें, इंजीनियर्स होगा। सब मिलने के बाद क्या करेंगे, जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए वो लोग सब लोग एक साथ काम करेंगे, ताकि जो हैजर्ड है उसका जो इफेक्ट है हम उसको कम कर सकें। नाउ देयर आर थ्री की स्टेजेस ऑफ एक्टिविटीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में तीन एक्टिविटी पे हमें फोकस करना है, ठीक है। थ्री सिस्टम में होता है वो, थ्री स्टेज में होता है। फर्स्ट वन इज बिफोर द डिजास्टर, सेकंड इज ड्यूरिंग ए डिजास्टर एंड थर्ड वन इज आफ्टर ए डिजास्टर। तो बिफोर ए डिजास्टर, डिजास्टर होने से पहले व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू टेक टू रिड्यूस the potential of human material and environmental losses caused by hazards, to ensure that these losses are minimized when disaster strikes। तो पहले से हमें डिजास्टर के लिए ऐसा रेडी होना पड़ेगा, मतलब जो पोटेंशियल जो रिस्क होने वाला है ह्यूमन और मटेरियल को वो कम से कम हो सके। पहले से हमें ऐसे रेडी होना पड़ेगा डिजास्टर स्ट्राइक करने से पहले। ड्यूरिंग अ डिजास्टर, जब डिजास्टर हो जाता है तब क्या करना पड़ेगा हमें, टू एंश्योर दैट द नीड्स एंड प्रोविजंस ऑफ द विक्टिम्स आर मेड टू एलिवेट एंड मिनिमाइज द सफरिंग। जब डिजास्टर हो जाएगा तब क्या करेंगे, हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा, मतलब जो सफरिंग अभी हो रहा है उसको कम से कम, उसको जल्दी से ठीक किया जाए, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए इमरजेंसी में, और उसको जो सफरिंग है बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको कम किया जाए। आफ्टर a disaster, to achieve a rapid durable recovery which does not reproduce the original vulnerable conditions। तो देखो जल्दी से इसको जो रैपिड और ड्यूरेबल रिकवरी है, मतलब जल्दी से रिकवरी करना है और अच्छे से, मतलब टेम्पोररी नहीं, वो परमानेंट बेस में जब रिकवरी करना है उसको हम लोग आफ्टर डिजास्टर वो सब हम लोग ध्यान देंगे। Now here you can see this is a disaster management cycle. In disaster management cycle, what happened? First we have to do prevention and mitigation. Okay, then we have to prepare. Okay, we have, this is the first step. So this is the first step, preparedness. Okay, we have to prepare first. And when the disaster take place, next we have to give the response. Second step, response. Then after response are provided, the people will be rehabilitated and recovery process will start. And after that, we will take prevention and mitigation steps so that the disaster effect can be reduced in future. So this cycle keeps on going in a disaster cycle. It is called disaster risk management cycle. Now, what is disaster risk reduction? Okay, disaster risk reduction is the concept and practice. Okay, it is a concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyze and reduce the causal factors of disaster. तो ये क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जब बात करेंगे, एक्चुअली व्हाट इज दिस एन आइडिया, इट इज अ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस एक्चुअली, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस that we are going to apply for the reduction of disaster risk. Okay, and what we are going to do through a systematic effort. Okay, there have to be a plan, there have to be a systematic effort and analyze and reduce the causal factors। जो फैक्टर है जिसके वजह से हो रहा है उसको रिड्यूस करने की भी इसमें कोशिश किया जाएगा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्री डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो डिजास्टर होने से पहले क्या क्या हम लोग कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, प्री डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर से पहले। First one is mitigation. So to eliminate or reduce the impact and risk of hazardous through proactive measures। proactive measures है, पहले से वो स्टेप लेना पड़ेगा हमें बिफोर एन इमरजेंसी और डिजास्टर ऑकर्स, ठीक है। मिटिगेशन करना है, मतलब उसका इफेक्ट कम हो उसके लिए हमें पहले से प्रोएक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा। Second is preparedness. So to take steps to prepare for and reduce the effect of disaster, that is to predict and to wherever possible prevent hazard from becoming disaster। हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से, ठीक है। प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर आने का चांसेस हो रहा है बाय लुकिंग एट द एनवायरनमेंट इन दैट एरिया, ठीक है। वी कैन प्रेडिक्ट इट एंड वेरेवर पॉसिबल वी कैन प्रिवेंट द हैजर्ड फ्रॉम बिकमिंग डिजास्टर। अगर कोई हैजर्ड है उसको डिजास्टर बनने से हम रोक भी सकते हैं उसको, पहले से अगर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस इन्वॉल्व्स mitigation of impacts of hazards on vulnerable populations and ability to respond to and effectively cope with their consequences। तो उसमें क्या क्या हो सकता है प्रिपेयर्डनेस में, इम्पैक्ट ऑफ हैजर्डस जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन को, उसमें रिड्यूस, उसको जो कम हो इम्पैक्ट जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन उसमें जब कम हो इम्पैक्ट उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। एंड एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड एंड टू इफेक्टिवली कोप विद द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर कुछ होने का भी चांसेस रहता है तो फिर हम लोग क्या है, हमारे पास वो एबिलिटी होना पड़ेगा कि हम लोग सही से रेस्पॉन्ड दें, ठीक है। रेस्पॉन्स करने के लिए हमें पहले से रेडी होना पड़ेगा और उस सिचुएशन को इफेक्टिवली उसके साथ डील करने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा।
ना पोस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ना पोस्ट डिजास्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज रेस्क्यू, जब डिजास्टर हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं, रेस्क्यू करने सकते हैं, प्रोवाइडिंग वार्निंग, इवाकुएशन, सर्च, रेस्क्यू, प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस, ठीक है, इमीडिएट हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा उस जगह पर जाने के बाद, हमें जो जो फंसा हुआ है वहाँ पर डिजास्टर में, वी हैव टू ट्राई टू हेल्प देम आउट। एंड सेकंड वन इज रिलीफ, टू रेस्पॉन्ड टू communities who become victims of disaster, providing relief measures। ठीक है, रिलीफ मेजर्स क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं एट द स्पॉट, दैट इज फूड पैकेट्स, वाटर, है ना, मेडिसिन, टेम्पोररी एकोमोडेशन, रिलीफ कैंप्स ऐसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज रिलीफ। एंड व्हेन टॉक अबाउट रिकवरी, नेक्स्ट क्या आएगा, रिकवरी स्टेज में आएगा। दिस स्टेज एम्फेसाइज अपन रिकवरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, जो विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर है उसको रिकवरी करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऑफ द डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड कॉज, जो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिकवर करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा जो डैमेज हो चुके हैं। Now see what are the world conferences on disaster risk reduction, तो दुनिया में एट अ वर्ल्ड लेवल क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस हो चुका है टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क, ठीक है। नाउ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नाउ इट इज अ सीरीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस फोकसिंग ऑन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका एम क्या है, सीरीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस का मीटिंग है, इज अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इट इज अ सीरीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस, और उसका फोकस क्या है, डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, ओके, डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट in the context of sustainable development. So they will keep in focus that sustainable development is the main motive of all these steps. Now see, the World Conference has been convened 3 times, 3 बार हो चुका है अभी तक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। फर्स्ट वन कहाँ हुआ है, योकोहामा जापान में 1994, देन फिर सेकंड वन कोबे, देन कोबे इन 2005, देन सेंडाई 2015, सब तीनों चीज तीनों जो मीटिंग है वो जापान में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वन योकोहामा 1994 में, सेकंड कोबे में हुआ था 2005, एंड थर्ड वन टुक प्लेस इन सेंडाई 2015। Now see, in 1994, the World Conference Natural Disaster Risk Reduction was held in Yokohama, Japan. The conference adopted the Yokohama strategy. The conference के बाद क्या है, strategy अपनाया गया, that is known as Yokohama strategy, and it declares that decade 1990 to 2000 as the international decade for natural disaster reduction. The conference the Yokohama strategy that declared किया गया था, वहाँ पर डिक्लेरेशन जो हो रहा है, एंड पूरा डिकेड, ठीक है, डिक्लेयर किया था उस डिकेड को, कौन सा डिकेड, 1990 टू 2000, ये जो डिकेड है, ठीक है, डिकेड मींस 10 इयर्स है ना, ये जो टाइम पीरियड है 10 इयर्स, 1990 टू 2000, दिस टाइम पीरियड वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, दैट इज INDR, ठीक है। इस डिकेड को जो है फ्रॉम 1990 टू 2000 इट वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। द योकोहामा स्ट्रेटेजी वाज फर्दर रिवाइज किया गया उसको बाद में, ठीक है, एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड इन ह्योगो कोबे इन जापान, ठीक है, जगह का नाम था। नेक्स्ट टाइम जो उसको रिवाइज किया गया योकोहामा स्ट्रेटेजी को, कहाँ पर किया गया, ह्योगो में, जिसको कोबे भी बोलते हैं, ठीक है, ह्योगो कोबे जापान में ही है, इन द ईयर 2005। फर्स्ट टाइम कहाँ पे, योकोहामा, दैट इज इन द ईयर 1994 में हुआ था, ठीक है, एंड इट वाज रिवाइज्ड इन द ईयर 2005 in the place called Hyogo or Kobe. The outcome of this conference was called Hyogo Framework for Action. तो इसका जो आउटकम निकला हम उसको Hyogo Framework for Action भी बोलते हैं। The next very important for us is the Sendai Framework for Disaster Reduction for the year 2015 to 2030, जो टारगेट है उसमें 2015 to 2030 के लिए लिया है, ठीक है। The Sendai Framework is a 15-year वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, याद रखना है, ठीक है, 15 ईयर के लिए है, फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2030, और एक वॉलंटरी है वो, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, which recognizes that the state has the primary role to reduce disaster risk। इसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल है टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क, but the responsibility should be shared with other stakeholders including local government, private sector and other stakeholders। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उसको शेयर भी करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, एंड अदर स्टेकहोल्डर जो भी है, एनजीओ वगैरह, सबको इसमें साथ में आना पड़ेगा। And the Sendai framework is the successor instrument of the Hyogo Framework Action 2005 to 15। ये जो ह्यूगो फ्रेमवर्क था उसका सक्सेसर है, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क। और ह्यूगो फ्रेमवर्क का मोटिव क्या था, मोटो क्या था, बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर,
ठीक है। दिस वाज द मोटो ऑफ द 2005 to 15 जो तुम्हारा ह्यूगो का जो फ्रेमवर्क था उसका मोटिव था, बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर। Now UNISDR, that is United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ठीक है, formerly it was known as UNISDR, but now it is UNDRR, ठीक है, United Nations Office for disaster risk reduction. Okay, it has been tasked to support the implementation, follow up and review of the Sendai framework. तो Sendai framework को कौन देखेंगे, कौन कंट्रोल करेंगे, UNISDR. The framework was adopted in the third UN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, जापान in March 2008, in March 18 2015, ठीक है, इस डेट में उसको एडॉप्ट किया गया था इन जापान, सेंडा सिटी ऑफ जापान। द सेंडा फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 30 आउटलाइंस 7 क्लियर टारगेट्स एंड 4 प्रायोरिटीज, ठीक है, 7 क्लियर टारगेट्स लिया है उसमें और 4 प्रायोरिटीज दिया गया है। टारगेट कितने हैं, 7 है उसमें एंड प्रायोरिटी 4 है फॉर एक्शन टू प्रिवेंट न्यू एंड रिड्यूस एग्जिस्टिंग डिजास्टर रिस्क, ठीक है, ये रिमेंबर दिस वन, 7 clear targets and 4 priorities. Now what are the priorities we are going to see here? First one is understanding the disaster risk. Second one is strengthening the disaster risk governance to manage disaster risk. And third one is investing in disaster reduction for resilience and enhancing disaster preparedness for effective response and build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. So first one is understanding disaster risk. हमें पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रिस्क क्या है उस डिजास्टर का। देन वी हैव टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। जो गवर्नेंस होगा रिस्क के लिए, जो गवर्नेंस है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट इट कैन मैनेज द डिजास्टर रिस्क। Then next we have to invest in disaster reduction for resilience, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा उसमें, जो डिजास्टर जो रिडक्शन के लिए जो रेजिलियंस उसको रोक सके उसके लिए, उसको स्ट्रॉन्ग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है वहाँ पर। एनहांसिंग disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. तो प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, है ना, एंड वी हैव टू बिल्ड बैक बेटर, दैट इज रिकवरी करना पड़ेगा, हमें रिहेबिलिट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन ऐसा करना पड़ेगा, ये सब 4 प्रायोरिटी है। Now it aims to achieve substantial reduction in disaster risks and losses of lives and livelihoods and health in the economic, physical and social, cultural and environmental assets of persons, business, communities and countries over the next 15 years। तो नेक्स्ट 15 ईयर्स है 2015 to 2030, उसमें हम लोग ये सब कुछ रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। डिजास्टर रिड्यूस करना है, मतलब हैजर्ड को डिजास्टर होने से रोकना है, रेजिलियंट प्रोवाइड करना है, फिजिकल, सोशल, जो इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, एनवायरमेंट को भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये ह्यूमन बींग्स को जो एसेट्स का भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, सबको जितना हो सके हम लोग मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। Now let's see, there is some institutional arrangement in India. What are the institutional arrangement to deal with disaster in India? So India is a federal polity, as you know. So the primary responsibility of disaster management rests with the state government, ठीक है, primary responsibility जो है disaster management के लिए वो state government के हाथ में दिया गया है। The central government lays on policies and guidelines and provides technical, financial, logistic support, while the district administration carries out most of the operations in collaboration with the central and state level organization. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, है ना, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट ऐसे प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेटली उसको कौन अप्लाई करेंगे, उसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको जाकर अप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस will be done by the district administrations with the help of both central and state level agencies. Now see, the cabinet committee on security. The cabinet committee on security deals with the matters relating to nuclear, biological and chemical emergencies. तो कोई भी अगर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल इमरजेंसी आएंगे, देन who will deal with such situation? It is the cabinet committee on security, ठीक है। द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, तो द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी oversees the command, control and coordination of the disaster response. तो जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो क्या क्या वो चेक करेंगे ऑफ द, वो किसके अंडर है, अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर है, और उसका काम क्या है, टू ओवरसी, ठीक है, ये सब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कमांड करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे, डिजास्टर रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है, सबका जो कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन वाला प्रोसेस है, इट विल बी अंडर द हैंड ऑफ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। The next is National Disaster Management Act of 2005, and this one is very much important. National Disaster Management Act of 2005.
The Disaster Management Act of 2005 has created new institutions at the national, state, district, and local levels. The new institutional framework for disaster management in the country is under नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 में, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ठीक है, थ्रू लॉ बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, बोर्ड एट द नेशनल लेवल पे बनाया गया, स्टेट लेवल पे भी बनाया गया, देन डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल पे बनाया गया है। ठीक है, ये जो एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक किससे काम करता है, थ्रू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? And the National Disaster Management Authority under the chairmanship of Prime Minister। जो NDMA का चेयरमैन कौन है? This is the Prime Minister is the chairman। ठीक है, and this body is responsible for laying down policies, plans and guidelines for disaster management and coordinating enforcement implementation throughout the country। तो जो पॉलिसीज होगा, प्लान, गाइडलाइन, सब कुछ कौन बनाएगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड इट विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन सब जो करेंगे, एनफोर्समेंट हो गया, implementation सब वही करेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड हु इज द चेयरमैन? इट इज द प्राइम मिनिस्टर। द पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस विल असिस्ट द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर्मुलेट देयर रेस्पेक्टिव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, जो पॉलिसीज गाइडलाइंस जो भी बनाएंगे एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भी बनाएंगे, ये असिस्ट करेंगे, इट विल हेल्प द सेंट्रल मिनिस्टर्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना, टू फॉर्मुलेट देयर रेस्पेक्टिव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, जो अपना अपना प्लान बनाने के लिए और प्रोग्राम बनाने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कौन? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए इज ऑल्सो मैंडेटेड टू रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर। तो डिजास्टर से जो अफेक्टेड पर्सन होगा उनको मिनिमम कौन सा जो मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहिए, फूड, वाटर, ऐसे जो मेडिसिन हो गया, तो मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, दैट विल आल्सो डिसाइडेड बाय द और रिकमेंडेड बाय द एनडीएमए। एनडीएमए हैज द पावर to approve national plans and the plans of the respective ministries and departments of government of India। तो अप्रूव भी करते हैं एनडीएमए के पास इतना भी पावर है कि वो अप्रूव करेंगे जो भी नेशनल प्लान होगा और प्लान होगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज का डिजास्टर से रिलेटेड, सबको अप्रूव करने का जब काम होगा वो एनडीएमए के हाथ ही होगा। Now the general superintendent's direction and control of national disaster response force are vested in and will be exercised by the NDMA। तो सुपरिटेंडेंस की बात हो गया, डायरेक्शन की बात हो गया, एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ जो एक फोर्स है हमारे पास, है ना, एनडीआरएफ जो फोर्स है उनको कौन सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और कंट्रोल करेंगे, इट विल बी डन बाय द एनडीएमए ओनली। The National Disaster Response Force is the specialized force for the disaster response which works under the overall supervision and control of NDMA। तो एक फोर्स है इसमें, है ना, बहुत ह्यूमन पावर है उसमें, and it is like a force, army force, and they are actually they deal with this kind of natural disaster. At the time of natural disaster, this NDRF, the force, the people that are involved in the NDRF, they will come and will do the rescue missions, and they are done under the supervision of NDMA। In this National Executive Committee, we have the National Disaster Management Authority first under the chairmanship of Prime Minister. Then we have the State Disaster Management Authority under the chairmanship of Chief Minister. Then at the local level, we have District Disaster Management Authority that is headed by District Collector or the DM। Now, State Disaster Management Authority। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे नेशनल लेवल पे है वैसे भी स्टेट लेवल पे एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रखा गया है। ना इट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, और नेशनल लेवल पे इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, एट स्टेट लेवल इट इज चीफ मिनिस्टर। ना लेज ऑन पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन द स्टेट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट प्लान। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट प्लान को SDMA काम करता है उसमें। It coordinate and implement the state plan in the disaster management। It recommend provisions of funds for mitigations and preparedness measures and review the developmental plans of the different departments of the state to ensure integration of the prevention, preparedness and mitigation measures। So जितना भी measurement लेना है, fund जो देना है, plan करना है, coordinate करना है, all these things at the state level is done by this state disaster management authority। The district level, we have the District Disaster Management Authority। It is headed by the district magistrate with the elected representatives of the local authority as the co-chairman। तो co-chairman कौन है इसका?
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा एक लोकल अथॉरिटी का। और डीडीएमए इज द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। एंड with other things, it also prepare district disaster management plan and monitor the implementation of national and state policies and the national, state and district plans. So other than these works, this district disaster management authority, what they do, they also plan and monitor the implementation of the national and state policies in the district. Okay, and they also check the national, state and district plans that is implemented in the district at the district level. Now let's talk about National Institute of Disaster Management. See, the National Institute of Disaster Management (NIDM) that is in New Delhi has mandate for human resource development and capacity building for disaster management within the broad policies and guidelines laid down by NDMA. जो NDMA ने जो guidelines and broad policies and guidelines provide करेंगे, उसी के अंदर जो National Institute of Disaster Management है, उसका काम क्या है? To make ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, ताकि वी कैन फाइट विद द फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, सो दैट वी कैन डू द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, है ना। एंड द जॉब ऑफ दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट is to provide human resource development, okay, and capacity building, okay, to resilient, to provide resilient to these different types of disasters. The NIDM is required to design, develop and implement training programs, ठीक है। NIDM का ये काम है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करे to increase the human resource. Then undertake research करेंगे, so that how they'll try to find out how we can reduce the effect of disaster. It will formulate and implement a comprehensive human resource development plan, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोवाइड असिस्टेंस इन नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नेशनल जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे डिजास्टर के लिए, उसको तो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ना असिस्ट अदर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सक्सेसफुली डिस्चार्जिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अदर जो इंस्टीट्यूट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होंगे, अदर ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक लेवल पे, ये उनको भी असिस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही से डिस्चार्ज कर सके सक्सेसफुली। It will try to develop educational materials for dissemination and promote awareness among the stakeholders. In addition to undertake any other functions as assigned by to it by the central government. तो क्या करेंगे? एजुकेशनल मटेरियल्स बनाएंगे, ठीक है, अवेयरनेस के लिए एडुकेट करेंगे, ठीक है। इट विल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस पर प्रमोट करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि मतलब डिजास्टर है क्या, उससे कैसे बचा जा सकता है, ऑल दिस थिंग्स विल बी प्रमोटेड बाय National Institute of Disaster Management, okay, among stakeholders. And in addition to it undertake other functions is assigned by to it by the central government. इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कुछ अगर फंक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसको भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर ऑल्सो, एंड विद द डिजास्टर मैनेजमेंट वी हैव कंप्लीटेड एनवायरमेंटल कोर्स. So if you have any kind of doubt, please write it down in the comment section, and I will try to give you the answers. Okay, thank you so much.